بھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اس وقت کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ دورہ ساؤتھ پنجاب پر ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ رانا نور الحسن صاحب مرحوم جو رانا صاحب آپ کے والد گرامی تھے، ان سے بھی ملنے کا موقع ملا اور تحریک نجات میں میرا یہاں پہ آنا ہوا۔ اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور یہاں پر اسیران جمہوریت گرفتار تھے، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ آپ کی دادی جان مرحومہ ہر سانس کے ساتھ جماعت کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے دعائیں دیتی تھیں اور ضعیف ہو چکی تھی، لیکن بڑی ایک باہمت شخصیت تھی اور ان سے میں جب ملا تو اس کے بعد پھر بار بار ملنے کو دل کیا اور ہمیشہ انہوں نے شفقت کا اظہار کیا۔ تو یہ رشتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، خلوص کے رشتے آج کل ملتے نہیں ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ رانا صاحب آپ میرا خاندان ہے اور میں انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ ہمیشہ نبھاؤں گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج ایک فہرست پڑھی ہے ناموں کی، یقیناً جن کے پیارے چلے جاتے ہیں ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں دن کے کسی حصے میں، کسی لمحے میں گھوم پھر کر پیاروں کی یادیں ستاتی ہیں اور آنکھوں کو رلاتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا ہے، باپ مرے سر ننگا ہوندا، باپ مرے سر ننگا ہوندا، پائی مرے کنڈ خالی، ماواں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جن کے پیارے چلے گئے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جن کے پیارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو آج بڑا طویل اپنا جو ہے وہ سفر کیا، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، اور اللہ کی مہربانی سے میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب کی خدمت یہ ہے کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ عزت اس رب کے ہاتھ میں ہے، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں جس کو عزت دیتا ہوں اس سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا، اور جس کو میں مقدر میں ذلت لکھتا ہوں اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ تو اس کا مختلف زاویہ ہے دیکھنے کا، میرے رب کی شان ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے، عزت نہیں ملتی کیونکہ اس رب کا فیصلہ ہے، اور کئی مرتبہ اللہ حکومت نہیں دیتا لیکن لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ تو آج 3 دن کا جو طویل سفر میں نے کیا، کہیں پر لوگ کہتے تھے میاں صاحب یہ نواز شریف صاحب نے ملتان سے لاہور موٹر میں بنائی، کانجو صاحب نے کہا جی یہ خونی روڈ ہوتی تھی، خانے وال لودھرا روڈ، یہاں پر روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، یہ میاں شہباز شریف صاحب نے دی۔ خالد وارن صاحب نے کل اربوں روپے کے منصوبے گنوائے، کاظم پیرزادہ نے کہا یہ بہاولپور حاصل پور روڈ یہ 96 کلومیٹر کی روڈ ہے، اربوں روپے کا منصوبہ ہے، اور پہلی مرتبہ تحصیل سے ضلع کو ملایا اس روڈ نے۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پھر مجھے یاد آتا ہے
میرے دادا مرحوم نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جب مخلوق خدا راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہی نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست ہے کہ ہم نے بڑے بڑے بول نہیں بولے، ہم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے موقع دیا تو ہم ان 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے۔ اپنی محنت کی، اللہ سے مدد مانگی، اور وہ کام جو ناقابل یقین تھا وہ اللہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی جماعت سے لیا، اور ہم نے خدا کے فضل و کرم سے جو پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا ہم اس پہ پورا اترے، اور پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے کو ختم کر کر اجالوں میں بدلا خدا کے فضل و کرم سے۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، بات بات لمبی ہو جائے گی۔ ابھی آگے بھی ہم نے جانا ہے۔ رانا محمود حسن صاحب یہاں پر سٹیج پر کھڑے تھے تو کہنے لگے میاں صاحب ہم آپ کی آرمڈ کور ہیں۔ میں سوچی پہ گیا، میں کہا رانا صاحب تسی آرمڈ کور نہیں، تسی ڈبل آرمڈ کور ہے گئے۔ تو انشاءاللہ رانا صاحب یہ رشتے پیار محبت خلوص کے ہیں جو مرحوم رانا نور الحسن صاحب نے جس کی بنیاد رکھی نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتے بھی قائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ آج اس عمران نیازی نے جو پاکستان کا برا حال کر دیا ہے، ہم ایک دفعہ پھر خدا کے فضل و کرم سے حکومت بنائیں، جو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور اس پاکستان کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں۔ نواز شریف شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون۔ ملتان میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف جو تھے وہ اس وقت خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا تھا اور جو کھاد کی 2300 والی بوری ہے وہ 7000 روپے کی بک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ مسلم لیگ نون حکومت میں آئی تو ہم مہنگائی جو ہے وہ کم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج مہنگائی، پیٹرول اور چکن کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، غریب عوام جو ہے وہ پس گئی ہے اور ہر پاکستانی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حمزہ شہباز کل سے دورہ ساؤتھ پنجاب پر ہیں اور مختلف جگہوں پر رحیم یار خان راجن پور میں وہ گئے ہیں، بہاولپور میں گئے ہیں اور وہاں پر وقتاً فوقتاً انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے ان کے ہاں تعزیت کی ہے، فاتح خوانی کی ہے اور ورکرز کنونشن سے خطاب بھی وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز ملتان میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے کارکنان کے ساتھ خطاب بھی کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی کوٹ میٹھن آمد ہوئی ہے۔ دریشک ہاؤس میں حفیظ الرحمان دریشک کی والدہ کے انتقال پر انہوں نے اظہار تعزیت بھی کیا ہے۔ سابق ایم این اے نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ حمزہ شہباز کو دستار پہنائی اور اس موقع پر تلوار کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ خرم شہزاد بھٹا کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز شریف کوٹ میٹھن پہنچ گئے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دریشک ہاؤس میں ہزاروں کارکنان بھی موجود تھے۔ حمزہ شہباز شریف نے حکومت پر سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار سبز باغ دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی۔ یہ رجحان سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک جو سڑک ہے اس میں بڑے حادثے ہوتے ہیں۔ یہ سڑک خونی سڑک بن چکی ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا سب سے پہلے آ کر یہ رجحان ڈیرہ اسماعیل خان کو ایکسپریس وے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
मेजबान हफीजुर रहमान दरेशक ने भी पीटीआई की मकामी क़यादत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि जब से ये हुकूमत आई है हर बंदे पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आवाम को गुर्बत की चक्की में पीस कर रख दिया गया। मियां साहब के दौर दे विच इत्था रोड़ा बंडिया हन, इत्था खाद सस्ती है, इत्था स्प्रे सस्ती है, इत्था तेल सस्ता है, इत्था डॉलर सस्ता है, दवाई सस्ती है, हुण तो सारे चोर कट्ठे थी गए। इस मौका पर यूसुफ खान दरेशक, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरचानी, अवैस लगारी, जमाल लगारी, राव हाकिम अली एडवोकेट, मलिक मुरीद हुसैन भक्कड़ समेत हजारों कारकुनान भी मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ खुरमशहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मुल्तान से राजनपुर रवानगी से कबल मुख्तलिफ मकामात पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। काफिले पर गुलपाशी की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज शरीफ का मुल्तान से राजनपुर रवानगी से कबल मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सेनेटर राना महमूदुल हसन, सिटी सदर राना शाहिदुल हसन, साद खुर्शीद कांजू और साबिक एमपीए अली खोखर ने डबल फाटक चौक पर इस्तकबाल किया। राना महमूदुल हसन का कहना था, हमजा शहबाज की आमद से कारकुन मुतहर्रिक हो गए। हमारे नौजवान कायद मुल्तान आए हैं, हम उनका वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में यहां से मुस्लिम लीग कामयाब होगी और ये जो मुश्किलात के दौर हैं लोगों के वो खत्म होंगे। साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर और राना इकबाल सराज की क़यादत में लीगी कारकुनान ने चौक नागशाह पर हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन का कहना था, कारकुनान ने साबित कर दिया कि मुल्तान नून लीग का कला है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो शेर इकट्ठे हुए हैं अपने कायद के वालियाना इस्तकबाल के लिए, ये एक जगह नहीं इंशाल्लाह पूरे मुल्तान उनको वेलकम कर रहा है और लोग इस वक्त महंगाई और बेरोजगार की वजह से तंग हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। हमजा शहबाज के काफिले पर गुलपाशी की गई। उन्होंने हाथ हिलाकर लीगी कारकुनान के नारों का जवाब दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। अभी आपको ब्रेकिंग दें, जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हो गई हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन मुतासिर होने से सार्फिन का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक इंतजामिया की सार्फिन से माजरत, कहा मसला जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हो गई। हुकूमत महंगाई से परेशान आवाम को आए रोज बिजली के झटके लगाने लगी है। नेपरा ने 1 साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। शहरियों और सनतकारों का कहना है कि बिजली महंगी होने से महंगाई और भी बढ़ेगी और जीना मुश्किल होगा। बिजली मजीद महंगी होने का नोटिफिकेशन अवाम पर बिजली बनकर गिरा, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। मुल्तान वालों ने भी हुकूमत को खड़ी खड़ी सुना दी। ये जरा बताएं लोगों को आके कि ये जो बातें करते थे बड़ी बड़ी स्टेज पे खड़े होके, अब लोगों को बताएं कि वो चोर थे, ये जो ये बैठे हैं ये चोर हैं जो पेट्रोल को, बिजली को, पानी को, रोटी को, चीनी को, किसी चीज को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि हुकूमत कभी बिजली महंगी करती है, कभी इस पर टैक्स बढ़ा देती है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट कर देती है। न जाने महंगाई का ये सिलसिला कहां तक चलेगा। इंतहाई अफसोसनाक कदम है ये, हमारे ऊपर ये एक बिजली का बम गिराने वाला एक अमल है, इसने हमें बर्बाद कर दिया है। बहुत गलत कदम है ये जिसने भी उठाया है ये, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से तंग है, आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस। इस मुल्क में कोई चीज़ हो ऐसी बताओ जो सस्ती हो। डेरा गाजी खान के अवाम का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली और बावड़ा के मुतालिक जो 300 यूनिट जिनका होगा, हुकूमत ने उसको ₹1.25 मजीद इजाफा कर दिया है। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले से महंगाई का बोझ है आवाम पर, पहले से इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और दूसरी चीनी महंगी है, खाने पीने की अशिया महंगे हैं। अब बिजली का बोझ जो है बढ़ा दिया गया है, 300 यूनिट के आगे और इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं। ₹1.74 ज्यादा टैक्स कर दिया गया है। खुदारा तर्स कर रहे हैं, अवाम पर तर्स खाएं। बिजली महंगी होने से अवाम के साथ साथ रहीम यार खान के सनतकार भी परेशान हैं। वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। बिल इतने हद कनो गरीब आदमी ना भर सकदू, ना कुछ कर सकदू, ना रोजगार लभदे, ना कोई नौकरी लभदी, ना कोई कमकार लभदे।
मजबूर थे कि हम मियांवाली में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मलिक असगर मुमताज का कहना है कि हुकूमत ने गरीब आवाम पर लाठी उठा ली है। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हमारे साथ जो इदारे चल रहे हैं उनको आप देखिए तो हर स्कूल में कम से कम 30-35 पंखे हैं। एसीज वगैरह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन दिनों में। अगर 30-35 पंखे चलते हैं उनका जो बिल आएगा और उसके ऊपर ये जो एक लाठी हमारे ऊपर बरसाई जा रही है तो इस लाठी से हम कैसे बचेंगे। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतें कम नहीं हो सकती तो कम अज कम उन्हें 1-2 साल के लिए बरकरार ही रहने दें ताकि कोई तो रिलीफ मिल सके। गाजी खान की निजी अकेडमी में खवातीन से ज्यादती की वीडियो वायरल होने का ये मामला है। स्कैंडल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम ने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। निजी अकेडमी में खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मरकजी मुलजिम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीओ फैसल राना ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर डीपीओ डीजी खान की टीम को शाबाश दी। डीपीओ ने बताया कि मुलजिम जावेद 2012 से 2019 तक अकेडमी चलाता रहा। कोरोना की वजह से अकेडमी बंद हो गई। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि उसके दोस्त मुजाहिद, उसामा और हबीब औरतें लाते थे। आरपीओ ने डीपीओ को सारे मामले की खुद निगरानी करने की हिदायत कर दी। मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक, हादसात की शरह बढ़ गई। 3 माह के दौरान 6800 से ज्यादा हादसात हुए जबकि 7500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक की भरमार, हादसात की शरह बढ़ गई। 3 माह में 6800 से ज्यादा हादसात में 58 अफराद जाँ बहक जबकि 7500 शहरी जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1377 खवातीन भी जख्मी हुई। हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल सवारों की लापरवाही करार। जो मेजॉरिटी है वो मोटर बाइक्स की है जो इन एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हैं। एक्सीडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो मोटर बाइक के हवाले से है उसमें जैसे आपने बताया अभी स्टार्ट में कि एक तो तेज़ रफ्तारी, बेहतियाती और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है तरबियत का ना होना। शहर में कई ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि हादसात की शरह में भी इजाफा होता है। चौक शाह अब्बास, एसपी चौक, कचहरी चौक, घंटा घर चौक और ईदगाह के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं। शहरियों ने ट्रैफिक निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। सिग्नल है लेकिन चालू हालत में नहीं है, तो इसलिए मुल्तान के काम से गुजारिश के सिग्नल को चालू करें। मुल्तान के अक्सर इलाकों में टूटी फूटी सड़कें भी ट्रैफिक निजाम मुतासिर करने की बड़ी वजह हैं। विहाड़ी रोड, हुजूरी बाग रोड, पीरा गायब रोड और सूरज मियानी समेत कई अहम शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं। काफी देर से टूटा हुआ है और हुकूमत बनवा नहीं रही इसे, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। सारा दिन ट्रैफिक की वजह से काफी देर हमारा वक्त जाया हो जाता है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है खराब सड़कें और ट्रैफिक का दरहम बरहम निजाम एम्बुलेंसेज के लिए भी दुश्वारी का बाइस है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर मजीद और इब्राहिम खान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान अवामी मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हो गए। शिकायत के हल के लिए ज़िले अफसरान को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। खिदमत आपकी दहलीज के 5वें हफ्ते का आगाज हो गया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि सड़कों की मरम्मत, बिजली की बेहंगम तारें और उनकी दुरुस्तगी, डिवीजन भर से गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स का खात्मा भी इस हफ्ते में शामिल है। डिवाइडर, स्लिप वेज के पत्थरों की रंगाई भी की जाएगी। सेक्रेटरी RTA को गाड़ियों की जाँच का हुक्म देते हुए कमिश्नर डॉक्टर इरशाद का कहना था कि नकारा गाड़ियाँ शहरियों की जान के लिए खतरा हैं, उनको हरगिज सड़क पर आने की इजाजत ना दी जाए, जबकि ऐप पर मौसूल शिकायत को 72 घंटों में हल किया जाएगा। तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल करने की तैयारियां हैं। महकमा तवानाई पंजाब ने तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला को आगाह कर दिया है। तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल करके मुकम्मल किया जाएगा। चाइना CPEC के तहत तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर करेगा। 132 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर $405 मिलियन की सरमायाकारी होगी। तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर से सिस्टम में 132 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 132 मेगावाट की बिजली पैदा होगी और इस पर जो लागत आएगी वो $405 मिलियन है। वज़ीर आला पंजाब को इससे मुतालिक अपडेट कर दिया गया है। तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल करके मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी ज़राअत रूमी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि काश्तकारों की खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। बेहतर कपास अब मुनाफा बख्श फसल बन चुकी है। वो रोहित से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत पंजाब का या वफाकी हुकूमत का ये फैसला था कि हमने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाना है,
उसने अपना रिजल्ट दे दिया है। इससे ये साबित होता है कि जब इतना बड़ा इलाका है पंजाब, जब साउथ में लोग सेक्रेटरी बैठेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी भी ज़रा डिफरेंट होगी, यहाँ प्रैक्टिकल काम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा सुपरविजन होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन रिवाइवल होगी। पिछले 10 साल से जो हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, कॉटन को बिल्कुल डाउन चली जा रही थी, सारे सिचुएशन के बावजूद पैसा भी लोग लगाते थे, 18-18, 20-20 स्प्रे भी लोगों ने करके देखे, कॉटन बचती नहीं थी। कुछ तनकीद करने वाले ये भी कह रहे हैं कि मौसम ने, वेदर ने आपका बड़ा साथ दिया है, नहीं तो ये चीज़ ऐसे नहीं थी जैसे। वेदर का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, मैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वेदर अच्छा रहा, लेकिन वो जितना हमारे लिए अच्छा रहा उतना ही पेस्ट के लिए भी अच्छा रहा। ठीक है। तो पेस्ट पिछले 7 सालों से बल्कि 10 सालों से इस साल ज्यादा है। इस साल पिंक भी ज्यादा है, इस साल व्हाइट फ्लाई भी ज्यादा थी, लेकिन वो व्हाइट फ्लाई पिंक जहां पर बोटेनिकल इस्तेमाल हुए, IPM हुआ, वहां पे उसने डैमेज नहीं किया। जहां हर तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वहीं पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली ज़राअत की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राई आलात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रात पर इसके बहुत ज़्यादा अपना मुतासर हुई है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितने भी ज़राइलात थे उनके रेट डबल हो गए हैं सबके, इसलिए ज़िम्मेदार की खरीद से पहुंच से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए दुकानदार भी बहुत मुतासर हो गए हैं, क्योंकि उन कीमतें डबल हो गई हैं, इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे, तो कारोबार भी तबाह हो गए और ज़िम्मेदार भी परेशान है। जो स्प्रे है उनका भी रेट डबल हो गया, खाद का भी रेट डबल हो गया, जो 3500 की बोरी थी वो 7000 की हो गई है, इसलिए ज़िम्मेदार बहुत परेशान है। हम तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रेट में कमी लाई जाए, महंगाई में कमी लाई जाए, ताकि कारोबार भी अच्छा चले और ज़िम्मेदार भी खुश। अब खसूसी बच्चे भी कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सकेंगे। मुल्तान डिवीजन के वाहिद खसूसी बच्चों के कॉलेज में कंप्यूटर लैब बना दी गई है। तलबा और तलबात के लिए कॉलेज में कंप्यूटर लैब बना दी गई है। लैब में 13 कंप्यूटर मौजूद हैं। कॉलेज में क़ुव्वत समाअत, गवाही, बसारत और जिस्मानी मौजू लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं। कंप्यूटर लेक्चरार मोहम्मद मुरसलीन का कहना है कि बच्चों को अब कॉलेज में कंप्यूटर सिखा सकते हैं। लैब की शदीद कमी थी, बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं बल्कि अमली तौर पर भी सिखाना ज़रूरी है। इस कॉलेज में पूरे जनूबी पंजाब से खसूसी बच्चे पढ़ने आते हैं। दूसरी जानिब तलबा और तलबात भी कंप्यूटर लैब बनने पर खास से खुश हैं। कॉलेज से जो है अपना इनको डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में जो है हम इनको कंप्यूटर के पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड सिलेबस जो है इसमें इन पेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कोरल ड्रा और इंटरनेट जो है बेसिक की उसकी ट्रेनिंग देते हैं। कंप्यूटर की एजुकेशन इस वक्त जो है इस लेटेस्ट दौर में जो है बहुत ज़रूरी है और ये बच्चे जो है बहुत शौक से कंप्यूटर को सीखते हैं।